Hi, good morning everyone. Welcome to the Shrine of English. This video I am making after a very long time. I'm sure that some of you must be thinking, the viewers of this channel must be thinking that why there hasn't been any video so far uploaded. Actually, for last 5 6 months or more, maybe more than this, I had been quite busy with my offline classes. As you know that after pandemic, the things got different. We had to restart our institute and we started them. Now we are with two branches. One is in Sangam Bihar Bandh Road and the second one is in Madangir DDA flats. And lots of people who live nearby area, they visit us, they come. They had been waiting for offline classes, so they are there. Anyway, the thing which I want to discuss today in this video is related to the things that what are the things you need to do in order to improve English. So small crispy points I'm going to say. These are the points I keep talking or I keep speaking in my classes, because a learner has to know that what are the things he has to keep in mind in order to uh, be consistent with language. So I will be using bilingual language because I could see that some of these students who watch our videos, they are not that much acquainted with language, English language. So probably they would prefer Hindi and English. So in this video, I'm going to tell you that two, three things if you just keep it in mind, so you can improve English. So first question is, इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन लोग हमसे आके अक्सर पूछते हैं क्लासेस व्हेन दे प्लान टू जॉइन ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं ऑफलाइन के सेंस में बात करूँगा कि अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो कितना टाइम लगना चाहिए? तो मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम आपका 6 महीने होना चाहिए, मिनिमम 4 महीने। 4 से 6 महीने, ये किस सेंस में मैंने बोला, इसका पैरामीटर क्या है? देखिए, पहले कम से कम 2.5 महीने तो आपको ग्रामर कराई जाती है, इंटेंस ग्रामर, जिसमें आप सारे ग्रामर के जो रूल्स हैं, दैट इज़ टेंस, मोडाल्स, WH क्वेश्चंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजिटिव सेंटेंसेस, some small other rules, and then passive voice, then last parts of speech। आप ये सारी चीज़ें एक कैटेगोरिकली तरीके से आप इसको जब करते हैं, यू अंडरस्टैंड। सिर्फ देखिए, जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लाइक somebody knows what is passive voice, somebody knows what is conditional sentence, but unable to use it in conversation, so it's of no use। फिर तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो 2.5 से 3 महीने का टाइम जो होना चाहिए वो इंटेंस ग्रामर पे होना चाहिए, अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ वोकेबलरीज, जो कि हम अपने इंस्टीट्यूट में कराते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में 6 टाइम्स इन अ वीक क्लासेस होती हैं, और पीरियोडिकल ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 10 days वी हैव टेस्ट सीरीज़ वोकेबलरी के, जिसको हम वर्क टेस्ट सीरीज़ कहते हैं। उसकी हम छोटी छोटी बुकलेट्स देते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें 100 करके हम उनको वर्ब्स देते हैं, उनको वर्ब्स याद करनी है, फिर ग्रामर। सो 2.5 months इफ़ यू वर्क हार्ड ऑन दिस पार्ट, फिर उसके बाद जो बचे हुए आपके 3 4 महीने हैं, दैट शुड बी फॉर योर पब्लिक स्पीकिंग। When I say public speaking, what does it mean? Public speaking means you need to stand in front of people, a huge crowd where 50, 60, 70, sometimes 100 people are sitting, and you speak English in front of them. One of the reasons why many people are unable to speak English is their agitation. Agitation is something, it kills their all ideas, it kills their all desire to learn English. Agitation का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी agitation ख़त्म हो जाएगी। No, agitation you can only get rid of when you are faced with that situation। तो agitation के लिए we have ample एक्टिविटीज़, जैसे वॉक एंड टॉक हो गई, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस हो गई, कंपटीशन क्लासेस हो गई। इवन पीरियोडिकली वी टेक स्टूडेंट्स आउट, हम उनको बाहर लेके जाते हैं, बाहर भी इंकरेज करते हैं कि क्लासरूम से बाहर इंग्लिश बोलिए। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बोलूँगा, आप अगर आपने ग्रामर वाला पार्ट पहले कंप्लीट करना है, जितना हो सके आप ग्रामर को बहुत अच्छे से करें। वंस यू हैव कंप्लीटेड द ग्रामर पार्ट, आफ्टर दिस डायरेक्टली थ्रो योर सेल्फ इनटू कॉन्वर्सेशन। जितना हो सके कॉन्वर्सेशन कीजिए। इनिशियली यू विल फाइंड दैट मेनी ऑफ योर सेंटेंसेस आर नॉट करेक्ट, योर वोकेबलरी इज़ नॉट करेक्ट, प्रोनाउंसिएशन भी शायद अच्छी ना हो,
डोंट वरी अबाउट इट। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, एंड इवेंचुअली वन डे यू विल सी दैट समथिंग गुड हैज़ कम अप। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। शुरू शुरू में आपको कोई रिज़ल्ट दिखाई देगा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करने जाएंगे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाई देता। जैसे कि जो जिम जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो इस बात से अच्छे से को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप जिम जाएं, हफ्ते भर बाद आके आप अपनी बॉडी को अगर शीशे में देखते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। इनफैक्ट आप 20-25 दिन के बाद भी आप अपने आप को देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आपको चेंज अपने शरीर में बहुत ज़्यादा क्या, कोई भी चेंज ही नज़र नहीं आएगा। महीने तक भी ऐसा होता है कि कोई चेंज नज़र नहीं आता, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर अंदर वो चेंज चल रहा होता है। वो विजिबल होने में टाइम लगता है। तो अगर एक जिम गोअर बैक टू बैक अगर 2.5-3 महीने तक जाता ही रहता है, उसमें वो ऑफ एंड ऑन ऑब्वियस है, वो चीट मील करता है, कभी छोले भटूरे खा रहा है, कभी छुट्टी कर ली, लेकिन वो फिर भी जाता रहे, कोशिश करता रहे, तो 4 महीने के अंदर वो उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। जैसा कि आपने आई एम श्योर बहुत सारे अपने आसपास लोगों को देखा होगा कि एक अलग बॉडी से बिल्कुल ही अलग बॉडी उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर ली। वो ट्रांसफॉर्मेशन एक बस इसी प्रोसेस से ही होती है। सेम इंग्लिश सीखने वालों को भी मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कीप इट इन माइंड कि कीप डूइंग। आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आएंगे शुरू में। आप ये सोचते हैं कि 15 दिन में नज़र आना चाहिए, महीने भर में नज़र आना चाहिए, बट इट डजंट हैपन। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप टॉकिंग टू पीपल, कीप गोइंग टू क्लासेस, talk as much as possible, and then what you will see that suddenly after 4-5 months there will be a ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लैंग्वेज। आपको रियलाइज़, ये प्रोसेस इतना स्लो चल रहा होता है कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जो आपके आसपास हैं दे विल नोटिस इट वेरी फास्ट। सो कंसिस्टेंसी, तो पहले एक बार दोबारा से आपने 2.5 महीने ग्रामर की, उसके बाद कॉन्वर्सेशन। सो अराउंड 5 to 6 मंथ अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपकी लैंग्वेज में फिर आपकी लैंग्वेज एक ऐसी लेवल पे चली जाएगी कि इवन इफ़ यू आर नॉट रेगुलर विद योर क्लासेस, स्टिल यू कैन प्रैक्टिस इट। इसके साथ एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बताऊं। इन द प्रोसेस, इस 2.5-3-4 महीने के प्रोसेस में डेवलप सर्टन हैबिट्स। द हैबिट नंबर 1 इज़ रीडिंग रेगुलरली। We have so many classes where we encourage students to read books. We have our own libraries at both the centers. We have libraries where we have more than thousands of books. We encourage students come read. We give them library card. They can come and take the advantage of reading. तो कोशिश कीजिए आप जहाँ भी रहते हो कोई लाइब्रेरी कार्ड आप लीजिए, क्योंकि किताबें कोई नहीं खरीदता। आज के स्टूडेंट के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो 1 या 2 किताबें तो खरीदते हैं, फिर वो सोचते हैं 2 किताबें पढ़ के इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, हो ही नहीं सकती है। तो सवाल ये है फिर कितनी किताबें पढ़नी चाहिए। इसका कोई लिमिट नहीं है कितनी पढ़नी चाहिए, आप जितनी पढ़ेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी, क्योंकि हर किताब आपको आइडियाज़, ग्रामर, वोकैबलरी, डिक्शंस और बहुत सारी दूसरी चीज़ें आपको देती हैं। लेकिन एक स्टूडेंट अगर एक ही या 2 किताब पढ़ रहा है, वो कुछ भी नहीं ले सकता उसमें से। जब आप कई किताबें पढ़ जाते हैं, 50-100 जब आप किताबें, तब आपको समझ में आता है कि कैसे पिकअप करते हैं वर्ड्स को, कैसे ग्रामर को पकड़ते हैं। शुरू में इसका कोई तरीका नहीं है कि आप वो ग्रामर उससे इम्प्रूव करने लग जाएंगे। तो एक हैबिट आपको मैं कहूँगा कि डेवलप इट, एंड दैट इज़ रीडिंग। जितना हो सके आप रीडिंग की हैबिट बनाइए। आजकल लोग मेरे को बोलते हैं कि सर रीडिंग करना बहुत मुश्किल है, बोरिंग है। हाँ बोरिंग है, लेकिन आप इसको 15 मिनट 10 मिनट से शुरू करें। शुरू में ये डिफ़िकल्ट लगेगा, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको शुरू करेंगे यू विल डेवलप अ टेस्ट। हर चीज़ का पहले टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। जैसे वी आर सिटिंग राइट नाउ इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस, वी आर हैविंग दिस मीन्स वंडरफुल गाला टाइम हेयर। आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया जगह है, लेकिन इतनी सुबह यहाँ आने के लिए, इतनी अच्छी जगह पे बैठने के लिए मैंने ये बहुत पहले से ये हैबिट डेवलप की है कि सुबह उठना है, सुबह जाना है और अपने आप को फिट रखने के लिए। तो अब अच्छा लगता है कि अगर अब जिस दिन ना आओ उस दिन अच्छी फीलिंग नहीं होती। जिस दिन अगर ये स्किप हो जाए किसी वजह से तो बुरा लगता है। तो ऐसे ही आपके साथ रीडिंग में होगा। अगर एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा
कि जिस दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा उस दिन आपको एक खालीपन की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि यार कुछ मिस हो गया। ये आपकी इंग्लिश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हो सके तो 20 मिनट से शुरू करें एंड देन ऑफ कोर्स इंक्रीज़ इट। तो आपने अगर रीडिंग शुरू कर दी है तो रीडिंग के बाद एक और छोटी सी चीज़ आप साथ के साथ करें, लिसनिंग। जब भी मौका मिले इंग्लिश में चीज़ें सुनने की आदत डालिए, इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा इंग्लिश जो बोलते हैं लोग वो किस तरह से बोलते हैं। तो जो आपके फेवरेट लोग हैं जिनके स्पीचेस सुनने आपको अच्छी लगती है, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ तो मैं पूरे रास्ते सुनता हुआ कुछ आता हूँ, तो ये मेरा 1 डेढ़ घंटे का टाइम होता है जिसमें मैं बहुत सारे अच्छे स्पीचेस सुन रहा होता हूँ। तो आप भी इस तरह की चीज़ें इनकरेज मैं करूँगा कि जो आपका एक फ्री टाइम होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उस समय बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, तो इस समय आप कुछ अच्छी इंग्लिश में स्पीचेस सुनिए और आप देखेंगे कि ये चीज़ें भी आपकी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आएंगी। इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एंड दिस कैन गो नॉन स्टॉप। सिंस आई वाज सिटिंग इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस, सो आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड get my viewers acquainted with certain ideas which I practice in my classes. These are my practical concepts. With these concepts I have transformed the knowledge of many people, so I'm encouraging you all, if you are willing to learn English, please join any institute, not necessarily you come to our institute. ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि लोग सोचते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगी। आप किसी भी गुरु को पकड़ लीजिए, बस ईमानदारी से पकड़ लीजिए उसको, और जितना हो सके आप वो जितना जानते हो, ज़रूरी नहीं उनको सब कुछ आता हो, लेकिन वो जितना जानते हो उनसे उतना तो ईमानदारी से सीखिए, देन ऑफ कोर्स योर नेक्स्ट लेवल विल कम। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और या आप इंग्लिश या जो प्रोसेस की बात हम कर रहे थे, एनी क्वेश्चन यू हैव, प्लीज़ ड्रॉप दिस योर क्वेश्चन इन द मैसेज बॉक्स हेयर। आई वुड लव टू रीड। आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। और बहुत सारे लोग बुक के बारे में पूछते हैं। द बुक इज़ अंडर प्रेस, ये प्रिंटिंग में है। वंस वी गेट थ्रू तो ये दोबारा से अवेलेबल होंगी ऑनलाइन बिकने के लिए। So with this light note, I want to take off and I want to say all have a nice day. Enjoy your day and keep learning and be motivated. Thank you so much. Have a nice day.